I, on behalf of EPCH, welcome you all to this session on navigating the challenges in sea freight and cross-border logistics by harnessing technology. This is one of the very important topics have become very much relevant in today's times when we see certain geopolitical things happening which are affecting the sea freight trade. Now today we have with us two guest faculties. Most of you must have met Mr. Manish Ahluwalia before. He has been with us for the past years and he has been delivering lectures at various forums organized by us. He is a senior level executive with 30 plus years of experience in global supply chain, international shipping and integrated logistics solutions. So we'll give him the opportunity first to make his presentation. We are also joined by Mr. Vivek Sharma. He is business head with ShipRocket. As you all know, ShipRocket is a tech-based solution provider and has coming up really well. So we would like to hear from him how to harness the technology for logistics solutions. Vivek ji is a logistics professional with over 35 years of experience in international logistics and has worked in India, UK, Hong Kong, Germany, USA, Dubai and many other parts of the world. So we welcome both of them. So to formally welcome them, I would request Mr. Pasi to present them with a bouquet of flowers. Manish ji. And to Vivek ji as well. Thank you, sir. Now I would request Mr. Ahluwalia to make his presentation. Huge for me. And amongst the exporter, I would say personally, our career has been flourishing because of you guys. You have really contributed not only to the industry, but personally to all the service providers. So I must thank you first of all. And again, Basi sir, thank you so much. Another great session. You picked up a absolutely great topic. So just for the beginning, I would like to give a small introduction about myself. My name is Manish Ahluwalia. As Mr. Rawat has mentioned about me, that I have spent around 3 decades. मतलब इतना time निकल गया पता भी नहीं चला ऐसा होते हैं. So 30 years I have spent. 17 years of my career I have been within shipping companies. It was Anglo-Dutch, it was Japanese, it was Korean. So I have worked almost with all nationalities. So then I have been working with the freight forwarding companies. I have been engaged in LCL, FCL, air freight, custom clearance, and also I am very delighted to mention that I have also worked with the. Sorry, do I need this? So, and I would also like to mention here that I also have an experience of working with exporter, importer, and manufacturers. Right. So I can really understand your psyche. What is your expectation? Because the manufacturing company which I was serving as a logistic head, I was working as a vice president for corporate logistics. They had a volume of around 3,500 containers per month. Right. So we had all sorts of problems. What you are facing today is a daily routine, for any logisticians in those companies. So what I am going to do is, I am going to share my experiences, my observations from the industry, and I will try communicating some kind of a solutions to you, because I am sure that all of you are going through a very tough time with regards to the today's topic. Topic क्या है? Navigating the challenges in sea freight and cross-border logistics by harnessing technology. And I am so glad Mr. Sharma is also along with us, because he is going to. I will not be speaking too much about technology. If we have somebody from a company like ShipRocket, I think he will fully justify that session. So, as I mentioned, and I expect everybody here is an exporter, exporting community. So that's a brief introduction about myself. It will be very difficult to have individual introduction of each one of you. It will be very difficult because we have a limitation of time. तो मैंने एक introduction आप लोगों को क्या दिया हुआ है? That exporters are one of the fundamental drivers of growth for any economy globally. So you people have been the fundamental drivers of the economy of our nations.
you influence country's GDP, exchange rate, level of inflation, as well as interest rate. So you can imagine what important role you are contributing toward the nation also. So I would really appreciate a round of applause for each one of you. So the topics which I am going to cover today are going to be very, very important. I hope it is. I am going to give a small general awareness about the Indian handicraft industry with regard to exports. So this presentation is completely dedicated for the export of handicraft. Although as I comes from a shipping background, we call it freight all kinds, FAK rate. मतलब एक कंटेनर है उसके अंदर क्या जाता है हमें उससे इतना मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है freight rate से. So, but in today's session, I tried training myself to speak only about the handicraft as such as a commodity, because handicraft is not like from today it is being exported. I have seen since the beginning of my career. I remember when in the early 90s, I joined a PSU called Container Corporation of India Limited, Concor. After coming of their first ICD in India, which was at Pragati Maidan, very near to this place, and then it shifted to Tughlakabad. The ICD at Moradabad also came up during that time. So I remember I used to visit there very often, and the export was taking place, although there was no technology, online or e-commerce ko to word hi nahi tha. So everything was manually done, So I have seen that time also, so I can make a comparison. अभी हम बसी साहब के साथ बैठे थे, then he was also mentioning a very pertinent point that it used to be a very simplified method during that time. There was some bright thing about our past also, that it was very simplified as compared to today's. I know there is a lot of technology like e-commerce has come up, but then पुराने ज़माने में थोड़ा simplified होता था, one-to-one approach बहुत ज़्यादा थी, I remember CHA used to be a family member, for all the exporters, so वो relationship build करा हुआ था. So we are going to talk little bit about the Indian handicraft exports from the shipping point of view. Globally उसका क्या role हो रहा है? Then of course today's topic, ocean freight and surcharges. See, I am not only going to talk about the ocean freight, I am going to be talking about the surcharges as well, which is really impacting your business. इतने सारे surcharges हैं कि आप शायद को रोक दोगे. There are so many, around 20 type of surcharges are there worldwide. War risk surcharge, peak season surcharge. So we are going to talk about it so that you have a little bit of understanding when you speak to your buyer or when you negotiate with the shipping company. तो आपको पता होना चाहिए charges हैं क्या, right? And then of course a hot topic जिसको मैंने red में mention करा है, वो कहलाता भी है Red Sea crisis, right? So it's a very, very serious thing, to discuss. And I'm not only going to really explain you, I'll try to familiarize you वो क्या है, what is the situation with regard to the Red Sea crisis जो पूरे world को impact करती है, and definitely India को कराई है. Of course, I'm going to cover very briefly about the import terms, which is international commercial terms, right? You must know about it. I'm sure ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा. I'm expecting that more than 50% of what I'm talking to you, you are already aware of it. But we will have, this is more of a exchange program rather than one-sided traffic. तो मैं हालांकि मैंने लिखा है Q&A लास्ट में, but आप feel free to stop me, give your input, ask questions, ask queries. If I am not able to answer, you have all the experts sitting around, they may bring a solution to you. But let's make this more of an exchange program, and more thought-provoking, right? So I have made a presentation. We will flow in that presentation. But if you think there is something important, please bring it to the table. Technology role in supply chain. As I said that my colleague is there, who's going to really talk about this in details. Of course, I will also be touching upon because I am not a service provider of a technology, but I am using it like you. From that user point of view, I am going to share something, wide. And of course, Mr. Rawat actually had mentioned that it is very important that I should cover cross-border logistics. आपने वर्ड सुना होगा, but इसकी गहराई में जाएंगे कि इसकी importance क्या है, solutions क्या है, और future क्या है. All right? So can we start now? Yes, please. Thank you very much. Has been achieved is 32,758 crores rupee. This sounds a very, very big number, but it is less than $4 billion. So I'm not kind of
discounting the importance of handicraft here. Please excuse me if I am making a small comparison with little other commodities like textile, because as I mentioned, as a shipping company, as a carrier, we deal with all sorts of commodities. तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो दूसरी अदर कमोडिटीज है, लीडिंग कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट इन इंडिया, उसका क्या हाल है. They are doing around 34, nearing to 35 billion dollars, and this is almost the second largest industry in India, you know. So as I mentioned, I visit Muradabad, I also visit Panipat. So I'll give you some experience which I actually have shared with the exporters. So I go to Jaipur, Jodhpur, Ludhiana, Jalandhar, Sportswood, everything, you know. So we carry everything, but we will confine to handicraft over here. And what is India's position? We are as a nation doing around 437 billion dollars. So exports are here, we have proved it. So let's make a small comparison. Although comparison है नहीं, but फिर भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. China कितना है? 280 million TEUs as a throughput, and the revenue is 3,380 billion dollars. मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें? मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि वो भी रेड सी के शिकार है कि नहीं? They are also suffering the same issue, you know, because all the shipment from China and all of Southeast Asia to Europe and US goes from Red Sea. So जो प्रॉब्लम हम अपनी बता रहे हैं वो दूसरी कंट्री भी फेस करनी है, तो वो कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? प्रॉब्लम तो उनके लिए भी कॉमन है ना. So it is going to be thought. I want that you should come up and say, नहीं, you know, this is something which we are doing wrong now. That it's trying to do something new. So ये सेशन उसके लिए, कोई यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन नहीं है. आप सारे you are all very valued exporter. You know, you have tons of experience. You know, so I want you should bring this experience during this session. एक इंटरेस्टिंग स्लाइड और है. मैं राहुल साहब से माफी चाहूँगा, मैंने थोड़ी चुराई है उनकी वेबसाइट से, which is like this. What is the share of handicraft country? The big pie is to the US. So you can imagine North America, how important this market is actually. What is the second highest? Europe. You talk about any country here, you talk about France, Germany, Italy, Netherlands, and then even UK. So put them together, it's more than 25%. So unfortunately, what are we talking here? We are talking about two trade lane, USA or Europe, जो सबसे ज़्यादा affect हो रहे हैं, isn't it? And your earnings is maximum exporting to these nations. Tell me if I'm wrong. Market, our market is North America, which is USA and Europe, and it will remain like this. कोई बायर की तब्दीली आने वाली नहीं है, कोई बिहेवियर चेंज नहीं आएगा जो फारिस वाले कहेंगे हमें हैंडीक्राफ्ट अच्छा लगेगा. So the market will remain like this. तो मार्केट ऐसी रहेगी तो आप सेम तरीके से काम तो नहीं कर पाएंगे. You have to think different way because your cost is increasing and the hurdles are coming more and more every day. Hurdles क्या है कि पहले उसकी बात कर लेते हैं. क्यों ओशन फ्रेट की ज़्यादा बात करी जाती है आजकल? इनफैक्ट अगर आप कोई मिनिस्ट्री की भी कोई मीटिंग में जाएं या कोई चैम्बर्स फीकी या CII या जहाँ पर भी जाते हैं, टॉकिंग अबाउट ओशन फ्रेट, सी फ्रेट. व्हाई? बिकॉज मोर देन 90%, तो 90% थोड़ा कंजर्वेटिव भी बोल रहा हूँ, 95% इज कैरिड ग्लोबली बाय सी. और एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, 70% बाई वैल्यू transported by sea freight, maritime transportation हम बोलते हैं. 70% revenue में, 90% volume में पैसी जाती है. So how you can ignore it? And it is estimated, with all due respect to Sharma ji, that ocean freight brings almost 1/10 of the freight cost if you make comparison with any other mode of transportation. All right. So it becomes, by default, it becomes very important transportation for your ship. Why container? एक तो sea freight, उसमें भी container क्यों choose करते हैं? Because it is a standard way of shipping the goods. It can fit into a ship by train and by truck. तो मैं हर बार ये समझाता हूँ, मतलब I am a visiting faculty to IIFT also. तो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मेरे को बोलना पड़ता है
जैसे आप A4 स्टेशनरी यूज करते हो ना, इट कैन यू फिक्स गोज इनटू द फैक्स मशीन जो पहले हुआ करती थी, एंड फोटोकॉपियर्स, तो वो ISO स्टैंडर्ड है। सो कंटेनर आर आल्सो ISO स्टैंडर्ड, जिससे वो हर पोर्ट में जो क्रेन है वो उठा सकती है, हर ट्रेलर में अफ्रीका में भी लोड हो सकता है, USA में भी हो सकता है, यूरोप में भी हो सकता है, साउथ अमेरिका में भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड कंटेनर है, which is like 20 फीटर, जो सर ने बोला 20 फीटर इक्विवेलेंट यूनिट इज द मेजर ऑफ आवर, हमारे ट्रेड में मेजरमेंट होती है TEU, 20 फीटर इक्विवेलेंट यूनिट, जो एक 20 फीटर होता है। 20 फीटर होता है, 20 फीट उसकी लेंथ है एंड 8 फीट उसकी विड्थ है, राइट? सो इट इज वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग अ कंटेनर, राइट? Let's come to today's topic. We are slowly approaching to that danger zone, you know. As I mentioned, मैं ocean freight की सिर्फ ocean freight की definition देने इधर नहीं आया हूँ. I am going to give you a comparison कि ocean freight का हाल क्या है destination wise, so that you understand it should hit you. Actually कि पिछले साल का comparison लेंगे, पिछले साल क्या हो रहा था और इस साल क्या हो रहा है, right? As I mentioned, lot of surcharges are being imposed on your shipment. These are extra fees shipping line is levied on your shipment. जो उनको लगाते हैं वो आपके आगे पास करते हैं। कौन-कौन से surcharges? For example, bunker adjustment factor. BAF तो सुना ही होगा सब। वो BAF क्या होता है? BAF is basically this is a surcharge to compensate the fluctuation of fuel cost. जो आपका crude oil का प्राइस ऊपर नीचे जाता है, उसको करने के लिए शिपिंग लाइन ये चार्ज लगाती है। और ये कौन-कौन से ट्रेड पे लगता है, कैसे आपकी शिपमेंट में इंपैक्ट आता है, इसके बारे में बात करेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट ओवरवेट सरचार्ज। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज़ दिस टॉपिक इज नॉट, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर पेइंग सरचार्जेस एक्चुअली। ISPs आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, प्लस यू पे TSCs। देखिए, आप जो ओशन फ्रेट की बात करते हैं, अगर आपकी शिपमेंट सपोज एनी एक्सपोर्टर, सर आप कहां से हैं? मैं Okay, anybody exporter here? कहाँ से सर आप? नहीं, which place, location? छतरपुर से। So once you export the shipment, अगर suppose USA करते हैं, USA करते हैं, तो आपके 3 कंपोनेंट जरूरी होते हैं। एक तो यहाँ के चार्जेस, which is called local origin charges, फिर ओशन फ्रेट जब कंटेनर लोड हो जाता है, मतलब यहाँ के चार्जेस में आपकी ट्रकिंग चार्जेस जो फैक्ट्री से निकलता है, बाय रोड, बाय रेल, कस्टम क्लियरेंस, ये सारे खर्चे लैंड साइड कॉस्ट बोलते हैं उसको। फिर जब चढ़ जाता है तो ओशन फ्रेट हो जाता है, फिर डेस्टिनेशन के चार्जेस, isn't it? So these are the 3 simple charges we are going to talk about. बट उसके ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो आप नजरअंदाज कर देते हैं, जो इम्पैक्ट करते हैं आपकी कॉस्ट में। So that's why I am bringing these charges to you, to your notice. I will talk about it. मतलब मैं एक डेफिनेशन लेकर बैठ गया तो काफी टाइम लग जाएगा उसमें। ये जो शिपिंग चार्जेस हैं, एक्चुअली दे आर बियॉन्ड कंट्रोल। मतलब आप उसमें कर नहीं सकते, आप शिपिंग लाइन को बुलाकर या ऑर्डर को ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं दूंगा। सर वो बियर रोक देते हैं हमारा। अब आइए मैडम, बिल्कुल ये है असली फॉर्म एक्सपोर्ट है। बियर रोक देते हैं, यस मैडम, कंटेनर रोक देते हैं। मतलब अगर आपकी ग्रुप कंपनी कहीं सपोज चाइना में है और आपकी शिपमेंट यहाँ से नहीं हुई, शिपिंग लाइन को पता चल जाता है, वो चाइना वाला कंटेनर रोक देते हैं क्रॉस बॉर्डर। So you have to be educated first of all कि ये चीज़ है क्या, ताकि आप फाइट कर सको या नेगोशिएट। मैं फाइट नहीं बोल रहा, because you have to live with these charges, you have to start believing in it कि इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। But these extra fees depend on the prevailing situation and the integrity वाले word use कर रहे हैं, integrity of the shipping line। Warless surcharge, war खत्म हो गया और surcharge लग रहा है, बन गया ना उसका, you know, peak season surcharge। कौन एक्सपोर्टर यहाँ पर होंगे, आई एम श्योर, जो हैंडीक्राफ्ट भेज रहे हैं क्रिसमस सीजन के लिए, क्रिसमस आपके टाइम, तो मैम ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और शिपिंग लाइन के लिए भी, क्योंकि ये पीक सीजन कहलाता है हमारे लिए, और उस पर लाइन लगा देती है पीक सीजन सरचार्ज। अब अगर नवंबर निकल गया, फेस्टिवल मना लिए सारे, उसके बाद तो PSS लगने का मतलब नहीं है ना, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि पीक सीजन सरचार्ज कब तक लगेगा, व्हाट इज इट्स वैलिडिटी। You have to fight on these grounds. You should not fight कि पीक सीजन सरचार्ज का अमाउंट $100 की वजह $50 में लगा रहे हो, सुनेगा ही। बट आप ये बोल सकते हैं पीक सीजन तो है नहीं, अभी किस बारे में लगा रहे हो। सो ये इंटीग्रिटी ऑफ शिपिंग लाइंस की भी बात आ जाती है इसमें। आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी, आई कम फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, बट आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू कि शिपिंग लाइंस वुड लाइक टू प्रोलॉन्ग दिस चार्जेस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चार्जेस। तो
तो आपको समझ में आनी चाहिए ये सारे चार्जेस है क्या चीज, ठीक है ना। तो यूरोप और यूएसए की ज्यादा बात करेंगे क्योंकि आपका 65% कार्गो ये सिर्फ दो जगह जाता है, यूरोप एंड यूएस। तो इसीलिए मैं उसी के रेट पे उठाकर लाया हूँ, उसी में क्या क्या हुआ है वो भी मैं लेकर आया हूँ, और सरचार्जेस क्या लग रहे हैं वो भी मैं लेकर आया हूँ, और इसको काउंटर कैसे कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। उसमें मैं चाहूंगा कि आप भी योगदान दें। यूएसए कोई भी कोटेशन आप फॉरवर्डर से मंगाओ या सीएचए से मंगाओ या शिपिंग लाइन से मंगाओ, ये सारे चार्जेस लिस्ट डाउन हो जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से होएगा आपको पता होगा, एएमएस सरचार्ज लगता है, बहुत पहले से लग रहा है, आज से नहीं 20 साल हो गए, ऑटोमेटेड मैनिफेस्ट सिस्टम, ठीक है। ये आप $35 पर पीएल देते हो, दिस ट्रेड हैज एक्सेप्टेड। ये जब शुरू में आया था तो सारे ऑब्जेक्ट कर रहे थे, अरे व्हाट इज दिस। अब ये यूएसए की रिक्वायरमेंट है, यूएस कस्टम्स की, कि भाई आपको ये चार्ज देना पड़ेगा बिकॉज योर शिपमेंट डिटेल हैज टू बी फाइल्ड विद यूएस कस्टम बिफोर लोडिंग ऑफ द कंटेनर ऑनटू द शिप। तो ये तो मैंडेटरी बन गया है, तो आप अब पूछते भी नहीं कि भाई क्यों लगा रहे हो, आपको पता है देना ही है। आप डीओ फीस भी नहीं पूछते जो डेस्टिनेशन में लगती है, वो बायर ऑफ कोर्स देता है अराउंड $85। नो आई डोंट वांट टू गो इन दैट, तो हर एक का अलग अलग है। मतलब मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा इसमें। हम बोलते हैं एफएके, फ्रेट ऑल काइंड्स, एक्सेप्ट गारमेंट में थोड़ा सा प्रीमियम हम शिपिंग लाइन कमाने की कोशिश करती है। $100 we have kept per container additional to handicraft. You just must know that the garment industry, because value of garment is much more, plus high priority commodity है, because seasonal है, अगर वो डिले हो जाएगी तो सीजन निकल जाएगा उसका। तो इसलिए शिपिंग लाइन चार्ज सम काइंड ऑफ प्रीमियम ओनली ऑन दिस कमोडिटी कॉल्ड रेडीमेड गारमेंट्स और अपैरेल्स। अच्छा, अब यूएसए आप भेज रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी श्योर बिकॉज योर कमोडिटी जनरली मे नॉट बी लाइट, हैंडीक्राफ्ट वैसे लाइट कमोडिटी ही मानी जाती है, बट यूएसए में वेट लिमिटेशन है, अगर आप वेट क्रॉस करोगे तो आपके चार्जेस लग जाएंगे उसमें। तो ये है लिमिट उसकी, लीगल लिमिट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन 17.7 metric ton for a 20 footer and 19.8 metric ton for a 40 footer. Now the thing is that the charges may differ from one shipping company to the other. मतलब अथॉरिटी जो यूएस की है वो स्टैंडर्ड लगाती है, हर शिपिंग लाइन अलग अलग चार्ज देती है, वो तो इंडिया में भी है। आप अगर इंपोर्ट भी मंगाते हो या आप इनलैंड हॉलेज पे करते हो, एक ही आईसीटी से एक ही पोर्ट में अलग अलग चार्जेस है शिपिंग लाइन से। We'll talk about that. We'll book it for future slides. बुकिंग कैंसिलेशन पहले कुछ नहीं लगता था, याद होगा, कैंसिल हो गई 3 दिन तक, अगर कैंसिल आपने 3 दिन से पहले बता दिया कोई चार्ज, अब अगर आप कैंसिल करके दिखाओ $100 आपके खाते में सीधा इनवॉइस पे लगकर आ जाए, पहले बता तभी तो ये सर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर आर्गुमेंट मत करना, ये तो देना ही पड़ेगा। देन जब यूएस में कंटेनर पहुंच जाता है तो चेसिस सरचार्ज, चेसिस सरचार्ज, चेसिस फी है क्या, ये जो कंटेनर ऑफलोड होकर ऑन द ट्रक जाता है टू द इनलैंड पॉइंट्स बाय रोड, सो दिस इज द चेसिस एंड विद इन द पोर्ट आल्सो जो मूवमेंट होती है उसका शिपिंग लाइन चार्जिंग, अब हर एक के चार्जेस अलग अलग है। सेम पोर्ट है न्यूयॉर्क पोर्ट, बट देन एमएससी इज चार्जिंग समथिंग एल्स, एवरग्रीन इज चार्जिंग समथिंग एल्स, और मर्स्क इज चार्जिंग, सबके टैरिफ अलग अलग है। तो आप क्या कर सकते हो, इफ इट इज अ प्रीपेड सीएफ शिपमेंट, यू कैन डिस्कस विद द शिपिंग लाइन ये चेसिस सरचार्ज, you either have to bring it down or you have to make inbuilt in the ocean freight. So these are the things which you can negotiate. फिर क्या है कि वॉरफेज सरचार्ज है वो भी लगेगा, ओवरवेट सरचार्ज है, अगर जो मैंने आपको लीगल वेट लिमिट्स बताई है उसके ऊपर चले जाता है तो हर शिपिंग लाइन का टैरिफ है ओवरवेट सरचार्ज, वो वाला भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आपने शिपमेंट कर दी और वो ओवरवेट निकला तो वो कंसाइनी से ले लेगा, कंसाइनी इज गोइंग टू बिल इट टू यू, आपके पैसे काट लेगा कंसाइनी, ऑलराइट। सो पनामा फी, सी आई एम जस्ट मेंशनिंग इट बिकॉज ये लग रहा है, आप यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। पनामा फी क्या है, देयर इज अ पनामा कनाल, इट इज अनदर शॉर्टकट, जैसे सुएज कनाल है वैसे ये बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, इसके जो ब्रिज करता है वो है पनामा कनाल। अब वो कनाल क्या है, मतलब एक लेबर की वजह से टोल है ये, वो वसूली कर लेते हैं पैसे का। सुएज कैनाल भी है, सुएज कैनाल क्या है कि इंडियन ओशन इज टू बी कनेक्टेड विद अटलांटिक ओशन, so this is the most shortcut and unfortunately Red Sea also comes over there, so we are going to talk about it actually. So this Panama surcharge is being charged by the shipping lines to the destination
to all these destination where it is going. And then after that also quotation में shipping line या forwarder लिखते हैं freight rates are subject to any other charges at destination as applicable. मतलब अभी भी कुछ रह गया है तो वो भी लिख देते हैं. So you must ask them a question कि भाई इसके बाद भी कुछ है क्या? And they will not say. आजकल एक और आया marine fuel surcharge, marine some additional fuel surcharge, right? And this is not applicable right now. वो कह रहा है कि अगर आपकी shipment en route है, voyage में है वो, on the voyage, और अगर वो surcharge लग गया, that is applicable to your shipment also. तो कोई validity date नहीं है कि आपने booking कर दी, you cannot fight the shipping line. He will write it. If it is applicable, you will apply it on your shipment, right? So you should be worried, and you must tell to your buyer कि भाई ये charges हैं जो shipping line ने बात करी है. अगर if it is prepaid, अगर ये prepaid नहीं है, I encourage you today कि भाई इसको आप FOB में convert कराइए as on payment. We will come to that, so that you should not be worried about कि destination में हो क्या है. Alright? So, but you must educate your buyer कि ये situation है, no? All shipping lines with whom we are negotiating, they are mentioning about these surcharges. ये तो USA की बात हो गई. Let's talk about Europe. ENS क्या है? आप यूरोप के लिए देते हो ना? $25 दे रहे हो, not a small amount. It is entry summary declaration. जैसे AMS है USA में, वैसे यूरोप के लिए ENS, मतलब एडवांस फाइलिंग. आपकी शिपमेंट जो है सेल भी नहीं, उससे पहले चार्जेस कट जाते हैं और आपको आपकी ड्यूटी है उसको फाइल भी कराना यूरोप के सिस्टम में. तो USA ने जब शुरू करी थी फॉर सिक्योरिटी ऑफ देयर नेशन, तो फॉलो करके यूरोप ने शुरू कर दी. उसके बाद किसने करी? चाइना. और जनरल नॉलेज टेस्ट होता है आपका सर. चाइना advance filing surcharge $20. Now, if you are not aware of any surcharge, rather than me speaking about each one of the charges, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कौन सा समझ नहीं आया? वियतनाम वाला CIS शायद नहीं सुना होगा आप शायद नहीं भेजते होंगे एक्सपोर्ट की शिपमेंट, बट CIS कहीं पे भी लग सकता है. दैट इज कॉल्ड कंटेनर इम्बैलेंस चार्जेस. इम्बैलेंस का मतलब जहाँ पर एक्सपोर्ट, जहाँ से एक्सपोर्ट नहीं है वापसी का, so वो imbalance charges लेती है shipping line because they have to empty reposition the container from maybe Ho Chi Minh City to Europe. So they try charging you in the local currency, you know, which is Vietnamese dong here. $1 is around 25,000 Vietnamese dong. Yeah. वो भी चार्ज कर रहे हैं. So आज की डेट में सिचुएशन इतनी खराब है. देखो ये सरचार्जेस भी सप्लाई एंड डिमांड का गेम है. जब आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड, तो सारे सरचार्जेस उड़ जाएंगे, राइट? अभी तो कोविड में आपने देखा ना, मतलब ढूंढ के सरचार्जेस लगाए थे शिपिंग लाइन, तो वो सिचुएशन होती है. यस सर. 2 months back, FedEx and DHL were selling food surcharge. तो मेरे valid है, कोविड का खत्म हुआ, चले जा रहा. अरे सर, मैं नाम नहीं लेना चाहता because they are all friends. एक शिपिंग लाइन लगाए थे सी गोइंग सरचार्ज. मतलब he is not using air freight port. Sea freight में जाए सी गोइंग सरचार्ज. Passenger fees $100. So what is that? Container monitoring surcharge. You know, so shipping line came up with some new idea of charging you. This is age of innovation. So when it happened, please answer me, when it happened, when supply demand में what difference था? कौन सा था? Supply ज़्यादा थी, demand ज़्यादा थी. So situation is today also just like that. Same situation. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. मैं I try to speak like a layman, you know, although you are all experts, but समझ में जल्दी आ जाती है बात. आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप वहाँ पे बिल देखते हो, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है रेस्टोरेंट की, वहाँ बहुत बड़ी लाइन है और वेटिंग चल रहा है, तो हमने देखा होगा वो वाले रेस्टोरेंट सर्विस चार्जेस लगा रहे हैं. And then if you are smart enough, you negotiate. अगर आपका बिल ज़्यादा है, स्मार्ट तो नहीं, अगर 10-15 हज़ार का बिल आ गया और उसमें 10% अगर सर्विस चार्ज लग गया, तो you will call that fellow. Yeah, what is this? You know, and if you argue more, maybe he will remove it also. वही हाल शिपिंग लाइन हो. Right? Not all the surcharges, but supply demand का गेम है. ये अपने दिमाग में हर बार ही ठहरा. अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, except these charges, you have to play around with the shipping companies. But this fact remain. और आज की डेट में जो डिमांड है वो like way high है of containers. मतलब yesterday Mr. Piyush Goyal was discussing with all the ministries how to bring the cost down. We come to that also.
तो ये थोड़ी मैं कमर्शियल की बात कर रहा था, लुक एट दिस, इमेजिन रावत जी, आपको याद है हमने फ्रेट पे काम किया, यू रोट अ लेटर आल्सो टू यूनिवर्सिटीज, सो ये उस टाइप का है। सो दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2023 टू 2024, कौन सा Q1? आज की डेट में यूएस ईस्ट कोस्ट का रेट किसी को मालूम है? $7,000। तो इसका मतलब 7,500 अभी शिपमेंट करके आ रहा है। सो ये 250% जंप कर गया ये पिछले साल से, तो आपकी सप्लाई चेन की तो दिक्कत हो गई ना बहुत ज़्यादा। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एन इंक्रीज? लुक एट यूरोप, कितना हुआ है? 40 फीट हुए 560% हाई। कोई और इंडस्ट्री में देखे आपने ऐसा कुछ होते हुए? ये बोला है। एक चीज किसी ने नोट नहीं करी, मैं यूरोप यूएस में आपको कंफ्यूज करे जा रहा हूँ, चाइना में क्या हुआ? जीरो। क्यों? चाइना में आज की डेट में एक्सपोर्ट का रेट क्या है? उस वाली शिप पे फ्यूल नहीं लगता क्या? आधा रास्ता है, कंटेनर चाहिए हमको चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए। वो सप्लाई एग्जैक्टली, सो यू आर गेटिंग इट, यू आर मच स्मार्टर है ना। तो क्या है, अभी इतना बुरा हाल हो गया सर, नवा शेवा से नेगेटिव फ्रेट में कंटेनर जा रहा है। नेगेटिव फ्रेट मींस टीएफसी जो पोर्ट की लगती है उसमें भी शिपिंग लाइन कॉम्प्रोमाइज कर रही है। कैन यू जस्ट इमेजिन? और रिटर्न कार्गो में आप देखोगे, रिटर्न में चाइना का फ्रेट इंपोर्ट अगर कोई कर रहा है $650, रास्ता होता है, फ्यूल नहीं है। तो ये तो आपको मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी क्यों है। विदाउट रियली आर्ग्यूइंग एंड फाइटिंग, यू हैव टू बिकम स्मार्टर कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। पर ये फैक्ट तो मैंने शेयर कर लो। इंपोर्ट में देखो क्या हाल है, ये देखो शंघाई ज्यादा हो गया। अब अच्छा, शंघाई का रेट और गिर गया नीचे, इट्स नाउ $650। आई एम टॉकिंग अबाउट Q1। आज की डेट में फ्रेट हैज गॉन डाउन। यूरोप का फ्रेट देख लीजिए आप, मच लोअर देन द एक्सपोर्ट। ये तो शुरू से ही है। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब फ्रेट रेट हाईएस्ट लेवल पे चले जाते हैं, देन ऑफ कोर्स वी कंडक्ट सच वर्कशॉप्स, बट आपने लोएस्ट फ्रेट यूरोप का कितना सुना है, अभी कितना पे करा है, कोई बता सकता है? गया था मैंने अपने करियर में $250 बेचा है। सो ये क्यों हुआ? आई थिंक यू आर द बेस्ट जज। हमने करना क्या है, ये तो सब फैक्ट है। वी आर लिविंग विद द रियलिटी ऑफ व्हाट वी कैन डू, वी आर गोइंग टू टॉक। ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर है सबको, ये तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टचिंग अपॉन द पेन पॉइंट्स। शिपिंग लाइन का क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने अपना शुरू किया था, देयर वर 48 शिपिंग लाइन वर्किंग इन नॉर्थ इंडिया, 48। आज की डेट में 33 रह गई। मैं खुद ही विक्टिम हूँ एक्विजिशन और मर्जर का। कैसे? आई यूज्ड टू वर्क, आई वाज अ रीजनल हेड इन द अर्ली 2000 ऑफ अ कंपनी कॉल्ड P&O Nedloyd। आई डोंट नो इफ किसी ने सुना होगा। आई वाज हेडिंग नॉर्थ इंडिया। इट वाज अ फैंटास्टिक एंग्लो-डच शिपिंग कंपनी। इट वाज रियली वेरी गुड, वेरी पर्सनल टच। सर आपने यूज किया है क्या? It was a very good company. Very good company. In fact, it is so good that our great Mahatma Gandhi travelled in the cruise vessel of P&O to travel to London to have that meeting here. East India Company was support, जितना भी import लेकर आते थे, used to come in P&O ships. It was such a renowned shipping line and it had gone in one day. ये देखिए क्या हुआ। इससे पहले नेडलॉयड थी, फिर मर्जर हुआ, P&O Nedloyd, POCL हुआ, फिर P&O Nedloyd हुआ। Now just imagine how many shipping lines were there. P&O कहाँ है? NYK कहाँ है? MISC है? एंजिन है? कहाँ गई? सीलैंड है? क्या हुआ? कौन सी कंपनी बनी? वो नहीं, ये वाली जो मजेंटा का था, देखा होगा कंटेनर। ओशन नेटवर्क एक्सप्रेस, एक शिपिंग लाइन कोई भी उठा लो आप, मर्स्क या CMA CJ में कोई, उसके अंदर 4 शिपिंग लाइन समाई हुई। तो आपके लिए क्या हुआ? चॉइसेस ये हुआ। अच्छा, लेस कैरियर मैंने आपको बताया था, शिपिंग लाइन जो 48 हुआ करती थी वो आ गई 30s में। ठीक है,
कंसोर्शियम बड़े बड़े होने लग गए। कंसोर्शियम क्या होता है? 4 shipping lines put together their vessels and run a service to Europe, run a service to US, and they have a weekly product offering to you. अब वही वेसल में आप देखिए सबसे बड़ा अलायंस कौन सा होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला मर्स्क सिंगल हैंडेडली सारे जहाज चला रहा था, कभी कंसोर्शियम में आया नहीं था। आज की डेट में they have already started speaking, both of them. They both are very big leaders, you know. This is called Gemini Alliance. They are going to join hands and they are going to run the service. CMA CGM, Costco and OOCL, Ocean Alliance ये बना रहे हैं। एक और alliance बन रहा है Premier Alliance. So shipping lines अब उनको पता चल गया, acquisition हो गया, merger हो गया, अब इसके आगे ये नहीं हो सकता तो क्या करें? They are running services in consortium. सारे इकट्ठे रन कर रहे हैं बिकॉज उनके लिए भी प्रॉब्लम है। जब सर ने बताया $300 का रेट आया था तो जहाज कैसे चलाएंगे? सो दे आर जॉइनिंग हैंड्स विद ईच अदर। दे नो दिस टाइम विल नॉट बी फॉरएवर। जो आप अभी 7-7 हज़ार का फ्रेट पे कर रहे हो, 3,500-4 हज़ार का यूरोप के लिए पे कर रहे हो, ये हर टाइम तो रहने वाला नहीं है ना। सो देन ऑल्सो सर्विस हैज टू सर्वाइव। सो दिस इज द वे द शिपिंग लाइन आर गोइंग टू बिहेव। दे आर गोइंग टू ऑफर यू द शिपिंग सर्विसेज अंडर कंसोर्शियम्स। ठीक है, तो आप दोबारा से आप देखिए कितनी सारी शिपिंग लाइन है who has disappeared. K line gone, Hanjin gone, you know, it's a mind boggling actually, you know, it's very worrisome actually. So NYK is not there, but yes, new shipping line also came up like China, which is the, I think मैं आपको ये बताना भूल गया, इंडिया का वॉल्यूम मैंने कितना बताया था? 11.4 million TEUs. चाइना सबसे बड़ा पोर्ट कौन है पूरे वर्ल्ड में? सबसे बड़ा पोर्ट शंघाई है। शंघाई पोर्ट का एनुअल थ्रूपुट है 50 million TEU, which is 5 times of our nation. One single port of China, वो भी काम कर रहा है। फ्रेट रेट की कहानी रोज उधर भी होती है बहुत। I am representing one of Chinese line and Costco has come up. Costco has really grown very big, you know, they acquired so many ships today. They are single-handedly running lot of services, you know. So new lines भी आई है but नंबर उनके बहुत कम है, राइट। सो ये एक स्नैपशॉट में आपको दिखाना चाहता था कि शिपिंग लाइन का हाल क्या है। हु इज कैरिंग योर शिपमेंट्स, उनके नंबर्स कम हो रहे हैं और वो कंसोर्शियम में आ रहे हैं। इसका मतलब देयर इज अ प्रेशर, राइट। सो द आइडिया टू शो दिस स्लाइड इज दैट जो आपने पुराने टाइम में काम किया था उसमें जो प्लेयर हैं वो कम होते जा रहे हैं। सो यू मस्ट नो that as the number are going to be less, so your relationship building has to be more with them, if not directly, maybe indirectly through freight forwarder या CHA या जो भी। We'll come to that also, that how should you negotiate ocean freight now, right? Any question on this slide? तो ज़्यादा बोल गया वैसे तो मैं। Shall we move ahead? Yeah, please. Red Sea crisis is an artificial reason, artificial barrier created by humans. It is more of a geopolitical instability. Alright, you will agree? The shipping lines are very happy. Yeah, they are. They are giving the maximum money now. Which is very unwise and not very called for. उसके बाद मेरी ऑब्जर्वेशन में क्या है? पोर्ट कंजेशन। जब भी पोर्ट में कंजेशन हुआ है किसी भी रीजन से, जैसे कि आपको याद है एवरग्रीन का वेसल था, सुएज कैनाल में क्या हुआ था? स्टॉर्म आया और वो घूम गया। The whole trade came to standstill. 400 वेसल इधर सुएज के, 400 इधर, सारी शिपमेंट अटक गई। 3 महीने तक ये खेल चलता रहा। रिसेंटली आपने क्या सुना था? बाल्टीमोर में क्या हुआ? ब्रिज Collapse. तो ये रीजंस क्रिएट हो जाते हैं, नेचुरल कैलामिटीज, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज, वॉर्स, पोर्ट कंजेशन, लेबर स्ट्राइक। सबसे ज्यादा आप में कौन इफेक्ट हुआ है? लेबर स्ट्राइक या लेबर शॉर्टेज एट द पोर्ट की वजह से। अगर जो सबसे पुराना एक्सपोर्टर होगा यहाँ पे, he may can answer my question that you know before US East Coast, Los Angeles was one of the major port in the US. Los Angeles पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट था, बट वो शिकार हुआ लेबर स्ट्राइक, लेबर शॉर्टेज जो आज भी चल रहा है। Union strike in the West Coast is like at the peak even today also. There's hardly any labor available actually. So that's why what has actually kept on happening over the period of time,
शिपमेंट जो ट्रैफिक था वो सारा शिफ्ट होता चला गया वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट में। एक टाइम में यूएसए की सबसे बड़ी लाइन कहलाई जाती थी APL, अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइन, रेड ईगल वाली। यूएसए की नेशनल फ्लैगशिप कंपनी है, उसकी ईस्ट कोस्ट की सर्विस ही नहीं थी। इनफैक्ट जब CMA CGM ने टेक ओवर कर लिया तब भी नहीं थी उसकी, दे वर ओनली केटरिंग टू द वेस्ट कोस्ट। न्यूयॉर्क दे यूज्ड टू सर्व वाया लॉस एंजलिस, कैन यू जस्ट इमेजिन। मिनीलैंड ब्रिज बोलते हैं MLB, मिनीलैंड ब्रिज, लॉस एंजलिस में कंटेनर ऑफलोड होता था बाय ट्रेन, इट यूज्ड टू गो टू न्यूयॉर्क। उसको बोलते हैं IPI सर्विस, या रिवर्स में फ्रॉम न्यूयॉर्क टूवर्ड दिस साइड वेस्ट कोस्ट बोलते हैं RIPI, रिवर्स इनलैंड पॉइंट इंडेक्स। It's a terminology used in the US market. So what I'm trying to tell you is कि बहुत ह्यूमन के एक बड़े रीजंस हैं, जैसे लेबर की प्रॉब्लम हुई, वो पोर्ट ही खराब हो गया है। मतलब बिजनेस गॉट डाइवर्टेड फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट टू द ईस्ट कोस्ट, और इतना डाइवर्ट हो गया कि ईस्ट कोस्ट की डायरेक्ट सर्विस आ गई, विच नेवर यूज्ड टू बी देयर। शायद किसी ने शायद सुना हो, नहीं थी सर्विस, न्यूयॉर्क की सर्विस, डायरेक्ट सर्विस नहीं थी, इंडोमैक्स सर्विस, 18 दिन का ट्रांजिट टाइम है, और 20 डेज में 17-18 या सो 20 डेज में आपका कंटेनर न्यूयॉर्क लग रहा था, डायरेक्ट सर्विस, ऑल वाटर वी कॉल इट, ऑल वाटर डायरेक्ट सर्विस टू न्यूयॉर्क। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन नाउ, इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बट वेस्ट कोस्ट का बैंड बज गया है लॉस एंजलिस का, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेबर स्ट्राइक। सो दे आर द रीजन, और वेस्ट कोस्ट का रेट भी बहुत ऊपर चले गया था व्हेन दे हैड अ प्रॉब्लम। भाई कोविड में क्या हुआ था, वेस्ट कोस्ट में सारे वेसल वहाँ पे फंस गए थे। जो चाइना से बिगेस्ट वेसल जो चलता है 24,000 TEUs का शिप जो होता है, दैट इज रनिंग फ्रॉम शंघाई टू लॉस एंजलिस अभी भी। द बिगेस्ट ट्रेड लेन एज ऑफ नाउ इज बिटवीन चाइना एंड US वेस्ट कोस्ट, राइट। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोविड इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल, आई एम सॉरी आई एम ब्रिंगिंग यू टू दैट एरा विच नोबडी वांट टू रिमेंबर। बट क्या हुआ था कि वहाँ पे सारे वेसल अटक गए, शिपमेंट तो हुई डिले, और क्या हो गया, कंटेनर फंस गए। अब कंटेनर तो सर्कुलेशन में रहने चाहिए ना, तो इंडिया में, चाइना में, वियतनाम में, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब जगह शॉर्टेज हो गई, सारे कंटेनर ही फंस गए वहाँ पे। 2-2, 3-3 महीने तक वेसल वहाँ पर क्वारंटाइन हो रहे थे। सो आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, फ्रेट रेट क्यों ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज कंटेनर अवेलेबल नहीं है। कंटेनर अब नाउ इवन मिनिस्ट्री हर जगह शोर मच रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो कंटेनर्स की, ऐसे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ओपन टू यू टुडे। ये ऐसे नहीं होगा कि इंडिया में एक कंपनी आई और उसने कंटेनर बनाने शुरू कर दिया और वो भरपाई कर देंगे, ऐसा नहीं होएगा। Containers are owned by the shipping companies, So shipping company had to think about Indian business, seriously, so that they bring their import into India. Empty requisition से काम नहीं चलने वाला। So मेरी नज़र में these are the pain points, Of course, I don't want to talk about already. And of course, there is a limited alternate. I think Mr. Sharma will agree with me कि पानी का जहाज जो है वो रेड सी ही पकड़ के जाएगा। अगर वो केप ऑफ गुड होप से जाएगा घूम के तो फ्रेट पड़ेगा, ट्रांजिट टाइम पड़ेगा। ये हवाई जहाज नहीं है, इधर से घुमा दिया। सो अनफॉर्चुनेटली 90% बिजनेस इसमें हो रहा है पूरा, 90% इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू मैरीटाइम। But the sad part is that we have very fixed and limited trade lanes in maritime. In sea freight में बड़ी limited trade lanes हैं, ठीक है। इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। रेड सी क्या हुआ, रेड सी में हुआ क्या, एवरी टॉपिक यू गो टू सप्लाई चेन कॉन्फ्रेंस, एवरीवेयर एक ही टॉपिक पकड़ लेते हैं लोग, रेड सी। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। Well, you can read it, maybe I'll request somebody in between जगाने के लिए मैं किसी न किसी को बोलूँगा, मैम आप पढ़ के बता दीजिए। You can read it for us. Go ahead. Yeah, please. Began on 19th October. Began on 19th October 2023 when the Iran backed Houthi movement in Yemen launched missiles and armed drones at Israel, demanding an end to the invasion of the Gaza Strip. ठीक है ना मैम। इसकी वजह से ये सारा रेड सी का क्राइसिस शुरू हो गया, क्योंकि ये लड़ाई छिड़ गई। लेट्स नॉट गो टू दिस लड़ाई, ये क्यों हुई, कैसे हुई, इस मतलब हमें उससे लेना देना नहीं है। हम अपने जो आज का सेशन है उस पर ही वापस आते हैं कि इस अटैक ने फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च 2024 60 वेसल्स को अटैक कर दिया।
जिसमें पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, शिपमेंट की लॉस हुई है, डैमेज हुई है, और क्या हुआ है, डिले हुई है। आई कम टू दैट, रीरूटिंग टू द लॉन्गर रूट एंड द सेफर पाथ्स, वो लेने के लिए करना पड़ गया। ये क्या हुआ, ये देखिए बिल्कुल केप ऑफ मतलब नाम तो बड़ा अच्छा है बट अनफॉर्चुनेटली घुमा के जाना पड़ गया। यू नो दिस इज रेड सी, ये सुएज है आपकी यहाँ से, ये सुएज कैनाल है, एंड ये पूरा नॉर्थ यूरोप है जहाँ पर मैक्सिमम हैंडीक्राफ्ट जाता है, और वो आपकी यहाँ से जाता है इधर से, एंड ये चाइना का कार्गो भी सारा इधर से होता हुआ ये वाला रूट है। सो दिस इज इंडियन ओशन एंड दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। सो ये जो अटलांटिक ओशन है ये यूएस ईस्ट कोस्ट को और यूरोप को टच करता है। ऑलराइट, सो अब क्या करना पड़ा, 6500 किलोमीटर ज्यादा कवर करना पड़ा, ये वाला रास्ता अपनाना पड़ा। सो it has not only increased the transit time distance but also the transit time, half a month more than आपका न्यूयॉर्क का ट्रांजिट टाइम क्या था 20 days, अब कितना हो गया। ये यूएस ईस्ट कोस्ट है, ये नॉर्थ यूरोप है, ये चाइना है, ये इंडिया है, तो यहाँ से जाता था ये शॉर्टकट लेकर, सो इसके साथ सरचार्ज भी देते थे आपको, अब जाता है यहाँ से। So even east coast of South America is also badly affected here. So this whole belt, including Europe, is badly affected. So it is not only you is aware of, आपके buyer को भी full knowledge है इसकी, but he will try to crib, I cannot take any extra cost. ये सब बोलेंगे आपको, तो आपको क्या करना है, अब ये सब सारे तो फैक्ट है, करना क्या है इसका। So we are going to talk more on those terms, कि what are the solutions available. शिपिंग डिले हो गए, कॉस्ट इंक्रीज हो गई, प्रीमियम बढ़ गए इंश्योरेंस के। आप इंश्योरेंस करवाते हैं शिपमेंट? मैम उसका भी प्रीमियम, और बायर आपको कहेगा भाई आप ही कराओ, आई नॉट बोले देते नहीं देते। मैं जनरल नॉलेज में अभी नहीं आ रहा, उसका कभी और सेशन लेंगे, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस। गॉड खुदा ना खास्ता जब जहाज डूब जाता है उसमें एक्सपोर्टर से शिपिंग लाइन पैसे और ले लेती है। बिल्कुल लेती है सर, बीएल के ऊपर छप के आता है, छप क्या कि कंटेनर पहुंचे ना पहुंचे पैसे आपने देने। हाउ मच एक एक्सपोर्टर बेचारेगा $25,000, उसका माल भी गया, और जनरल एवरेज होती है ऊपर से पैसे भी देने पड़ते हैं। उसका भी आजकल इंश्योरेंस है वेरी हाई प्रीमियम, मतलब उसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो आपका इंश्योरेंस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक टू योर लोकल गाइड्स कि भाई आई हैव बीन गिविंग बिजनेस फॉर सो मेनी इयर्स, तो अब क्या कर रहे हो सर सीआईएफ के केस में होगा ना, CIF के केस एफओबी में तो मैम वही है ना। अब बायर क्या करेगा, इनपुट टर्म्स की भी बात करेंगे हम। बायर आपको धकेलेगा, लो जी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से, है ना। वो आपको पता है क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा DDU शिपमेंट करो, बैक करो। मैं बात करूँगा उसकी भी, खतरनाक चीज़ है आज की। वही है सर ये होगा, बट हमें क्या करना है उसकी बात करेंगे। मेरे को आपसे इनपुट चाहिए, मैं तो खुद बना के ले आया प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से। सर हाँ प्लीज। अगर शिप मैंने इंश्योरेंस ले रखा है और शिप डूब गया फिर भी मुझे पैसे देने यस सर, उसका सर रीजन एफओबी के केस में क्या करेंगे? देखिए शिपिंग लाइन क्या कहती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं लेगी उसमें। जब जहाज, अब वो सबको अगर क्लेम सेटल करना लग गया तो वो इंश्योरेंस कंपनी का तो दिवालिया हो गया, क्योंकि गुड्स वैल्यू इतनी ज़्यादा है। ठीक, तो क्या होता है, जर्नल एवरेज पूरे जहाज का टोटल किया जाता है इनवॉइस वैल्यू, हर एक शिपमेंट का। असेसर्स होते हैं बहुत बड़े बड़ी कंपनियां होती हैं मल्टीनेशनल, उसका टोटल करके अमंग्स द एक्सपोर्टर इट गेट्स डिवाइडेड। मैंने इंश्योरेंस इसलिए लिया था कि अगर कुछ होगा तो फिर सर जनरल एवरेज का इंश्योरेंस नहीं लिया। यस, जहाज डूबने का इंश्योरेंस नहीं है उसमें। पढ़ो आप, शिपमेंट में आग लग गई, सॉरी ये बोलना नहीं चाहिए बट होता है, ठीक है, होता है। एक्सीडेंट हो गया, थेफ्ट हो गई, पिल्फरेज हो गई, उसका मिल जाएगा आपको। जहाज में आग लग गई, डूब गया, एक है ना VGM आज करते हो, वेरीफाइड ग्रॉस मार्क्स, जिसको सोलास भी बोलते हैं, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। सो सोलास इज व्हाट, जस्ट टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। हमने भी तो गड़बड़ बहुत करी है, मतलब हमने इन द सेंस अफ्रीका में या फ्यू नेशंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट दे मिसडिक्लेयर द गुड्स। मिसडिक्लेयर क्यों करते हैं? क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा मिलता है ना, तो इस वजह से जहाज भी डूबे हैं, मिसडिक्लेरेशन की वजह से।
इसलिए सोलास शुरू हुआ, इसलिए बीजीएम शुरू हुआ. बीजीएम इज ऑनर्ड बाय एवरी कंट्री टुडे. और क्या हुआ लास्ट में, अनफॉर्चुनेटली बायर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेन होते जा रहे हैं. बिकॉज बायर विल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द बायर टू पास ऑन दैट चार्जेस. यू कैनॉट पास ऑन दीज चार्जेस टू द बायर. वो कहेगा मैंने तो ऑर्डर आपको 2 महीने पहले दिया था एंड मेरी कॉस्टिंग तो पूरी हो गई है, आई कैनॉट टेक एनी मोर मनी ऑन दिस. जॉब लॉसेस हो रही है व्हेन वी मीट द एक्सपोर्टर्स. अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. एंड ऑलरेडी बेचारे वो SMEs हैं, छोटी कंपनीज हैं, उसमें छोटे छोटे वर्कर्स हैं. यस एक इंश्योरेंस होती है जो 500,000 1,500,000 में हो जाती है, एक होती है 1.25% ऑफ FOB वैल्यू. तो कौन सी करानी चाहिए? सर आपको ना उसके क्लॉज पूरे पढ़ने पड़ेंगे कि वो कवर क्या कर रहे हैं. जो 1.2 ऑफ FOB वैल्यू है डेफिनेटली इज गोइंग टू कवर मैनी मोर एरियाज, बट जनरल एवरेज नहीं करेगी वो कवर. आई थिंक योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट ओनली. अनफॉर्चुनेटली जनरल एवरेज की प्रीमियम ही इतनी हाई है कि कोई भी नहीं कराता. और जो भगवान को छोड़ देते हैं. बेसिक 500,000 वाली जो होती है वो तो वो वो मेरीन इंश्योरेंस है जो डोर टू डोर भी होती है. आपकी फैक्ट्री से निकला और वो सर शायद पिछली बार ही मिले थे जिनका TKD में किसी का गुड्स जो थी वो डैमेज आपकी हुई थी. सर इज अ बिग सफरर. ही इज अ रियल विक्टिम ऑफ दैट थिंग बिकॉज Concord doesn't pay you any big claim. They cannot settle your claim. They settle on the basis of railways, per kg 70 रुपए per kilo के हिसाब से तो वो claim settle करते हैं. तो सर की एक very valuable shipment, almost around 3 crores. So you have to sit with your insurance experts, and try to understand कि कौन सा insurance आपको लेना. Because door to door में I'm sure multimodal जो movement है उसमें सारी कंटेनर का ही इंश्योरेंस हो जाता है along with the goods, right? और ध्यान रखिए बिल ऑफ लेडिंग में हर शिपिंग लाइन में बिल ऑफ लेडिंग में लिखा हुआ है शिपर स्टोर लोड एंड स्टॉक कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, सारी जिम्मेवारी आपकी. बिकॉज आई हैव गिवन यू कंटेनर, यू हैव स्टफ्ड इट, यू नो व्हाट हैज गॉन इनसाइड, एंड इफ देयर इज एनी शॉर्टेज आफ्टर सील कटिंग तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो वो जो शॉर्ट लैंडिंग हुई है वो इंश्योरेंस में आपको क्लेम मिल जाएगा. अंडर सी इंटरनेट केबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी इंफॉर्मेशन थ्रू दोस केबल्स इज गोइंग अंडर द नेट्स. और उसमें भी it's not related to today's topic, but I'm just letting you know how critical it is for the whole of the world कि उसको भी कट करने की कोशिश की जा रही है. So all the internet cables around 95% of the world is going through Red Sea और shallow CIA 50 meters 50 to 100 मीटर की डेप्थ है बस, और अटेम्प्ट भी हुई है उसकी अनफॉर्चुनेटली. So I just heard it, तो आने का ये भी एक पॉइंट मैं डाल देता हूँ इसमें, that this is related to even technology IT companies also. They are very serious about it. It's not only confined to shipping and logistics. It's a very dangerous scenario. अच्छा, और क्या मैं फटाफट करता हूँ. आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही है. जो एक्सपोर्टर है इंडिया के, अनफॉर्चुनेटली उनकी सबकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब सेल हो गया और अटक गया देन यू आर लॉस्ट कि कंटेनर अब है कहाँ पर, उसको ट्रैक कैसे करें, किससे बात करें, कौन सर्विस प्रोवाइडर है. यू विल कॉल योर CHA, यू कॉल योर फॉरवर्डर, और उस फॉरवर्डर वो कहते हैं सर लाइन तो बता नहीं रही. तो यहाँ पे कितने सारे एक्सपोर्टर अटक गए क्योंकि बायर को भी नहीं बता पा रहे हो कि शिपमेंट का है. भाई यू हैव टू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समबडी. सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसको ट्रैकिंग कैसे करना है आपके आगे से without paying a single penny. Also I'll try, let's see, we can take even live case. आप कोई कंटेनर आप निकाल सकते हो अगर किसी पूछ कर जो लेटेस्ट कंटेनर कर रहा है, we can track it live, right? So you make it ready, we will just experiment it. Solution क्या है, जो इंश्योरेंस की भी बात कर रहा था. Solution एक तो टेक्नोलॉजी है which Mr. Sharma may cover it, in length, after me, और government support. Mr. Rawat had been really fighting it out for you. EPCH has been fighting it out for you. They have written letters to the concerned ministries also that please come forward and do something for the exporting community. Because मतलब अगर 550% अगर फ्रेट बढ़ जाए तो आपकी तो पूरी सप्लाई चेन ही हिल गई, राइट? कितने लोगों का तो ये कहना है कि सर मेरा फ्रेट कॉस्ट इज मोर देन द गुड्स वैल्यू. 3 times सर, 3 times. तो कैसे करें इसको? तो क्या है, एक तो चाइना इज एन एक्सपोर्टिंग नेशन, जो मैंने आपको नंबर्स बताए थे, 368 मिलियन TEUs, लाइक एक पोर्ट इज डूइंग 5 times मोर ऑफ इंडिया. उसको उसकी कंजम्पशन इज वेरी वेरी हाई.
वेरी वेरी फास्ट। तो वो क्या करता है, कई बारी कितनी शिपिंग लाइन का जब इंपोर्ट यहाँ पर आता है, वो कहता है मेरे को एक्सपोर्ट नहीं चाहिए, एम्प्टी कंटेनर लोड करो शंघाई के लिए, एम्प्टी कंटेनर लोड करो, बिकॉज हिज कंजम्पशन in any Chinese port is way higher than India, plus he is getting a better freight also. उसको यूएस यूरोप की फ्रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, उसके पास लिमिटेड स्टॉक है इन्वेंट्री का, तो वो क्या करता है, कहता है एम्प्टी भेज। अब अगर उसको कोई शिपमेंट मिल जाती है तो $5-10 पे उठा लेता हो। भाई ये तो हो गई, दिल्ली से जयपुर गाड़ी जा रही है, बस चल रही है और उसमें 100 सीटें हैं और 80 भर गई और 20 खाली हैं, लास्ट में उससे सीटें मारी, चलो यार मैं इतने में ले जाता हूँ। वैसे करते नहीं है वो लोग भी, मतलब वो भी समझदार है, वो नहीं करते, बट शिपिंग इंडस्ट्री में नेगेटिव फ्रेट चले जाता है। सो नेगेटिव मतलब जो मैंने आपको बताया था, जो पोर्ट का THC है, दैट ऑल्सो इज अब्सॉर्ब्ड बाय शिपिंग। इतनी डेस्परेशन मोड में आ जाती है शिपिंग कंपनी। सो यू मस्ट नो कि ये हो क्या रहा है, क्यों रेट इतना ज़्यादा ऊपर हो रहा है, एंड यू मस्ट ऑल्सो नो द सिचुएशन ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो, कि वहाँ पे कंजम्पशन कैसी है, सो दैट इंडिया में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है विद रिगार्ड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्सेस कंटेनर्स। क्योंकि देखो आप बात को समझो, फ्रेट फॉरवर्डर का गेम क्या है, आप लोग 1 2 3 4 5 आपके पास 10 कंटेनर का पर मंथ 50 हो गए सर। अब अगर इंडिविजुअली आप मेरे पास आते हो, आई एम नॉट हैविंग दैट कैपेसिटी टू ऑफर यू 10 के बेसिस में रेट, बट अगर ये फॉरवर्डर है, आप इनके थ्रू आ रहे हो, ये मुझसे नेगोशिएट कर रहे हैं, तो कितने का नेगोशिएट करोगे सर? 50 का। तो मेरा थोड़ा सा झुकाव इनकी तरफ ज़्यादा हो जाएगा कि मेरे को एक ही जगह से सब मिल रहा है। ये गेम फॉरवर्डर का है, विच इज़ नथिंग बैड इन इट, यू नो। ही इज़ गिविंग मी अ कमिटेड वॉल्यूम, ही हैज़ बिल्ट अप अ रिलेशनशिप विद यू गाइस, एंड देन you have a confidence in him, but he has to be smart. He has to be smart to first of all pass on that benefit also to you. ये नहीं कि खुद ही अर्निंग करना लग जाए सारा टाइम। प्लस ही इज टू टेक प्लेस टुडे, जो शर्मा जी बोलने वाले हैं, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल, क्योंकि आपको कंटेनर सेल हुआ और ये जो रेड क्राइसिस शुरू है, आपको पता ही नहीं आपकी शिपमेंट का है। मैंने एक शिपमेंट सहारनपुर से किसी एक्सपोर्टर की उठाई थी, कैरम बोर्ड्स। फॉर्चुनेटली उसमें कोई पेरिशेबल गुड नहीं था, कैरम बोर्ड्स थे, और वो भी कह रहा था पेरिशेबल है। 3 महीने तो कह रहा सीजनल है, सर इसकी सीजनलिटी क्या हो, कहता नहीं यार वो गेम खेलते हैं वहाँ पे। It had to go to a place in Red Sea called Hodeida, right? जिबूती के आगे थोड़ा सा। तो can you imagine how many? I'm a shipping guy, you know. कितना टाइम लगा इस शिपमेंट को पहुँचने में? 4 months. In between एक्सपोर्टर से एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लिए? फ्रेट कितना था? $1,000. उसके बीच में कितने सरचार्जेस ठोक के जो लिए, कभी स्कैनिंग करानी है, कभी कुछ कराना है, $3,700 एक्स्ट्रा पे करें बेचारे ने। वो कह रहा है यार अब पहुँचा दो बस तुम। सो एक शिपिंग लाइन भी मेरे सेल्स वाले ने बहुत चुनकर ली थी, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब हाँ ठीक है सर, ठीक है। क्या था, अली बाबा या कुछ ऐसा ही कुछ था, यू नो। या सो यू नो, सो यू हैव टू पे फॉर इट, नो, यू नॉट गोइंग फॉर द बेस्ट गाइस इन द मार्केट। सो ये सिचुएशन है। अच्छा एक चीज और चीज़ बता रहे, और स्मार्ट गाइस कौन है, जो शिपिंग लाइन की भी लॉजिस्टिक आर्म खुल गई है, जैसे कि CMA CGM की एक है सीवा लॉजिस्टिक्स, राइट, एंड दिस शिपिंग कंपनी हैज आल्सो कम इनटू रेल बिजनेस एंड दे आर रनिंग द ICDs आल्सो, जैसे MSC चला रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू नेगोशिएट कि यार आपकी तो रेल सर्विस भी है, आप मेरे को रेलवे फ्रेट कम दो, या फिर अगर ओशन फ्रेट आप ठोक के ले रहे हो, मैं आपकी यही वाली ICD यूज़ करूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है, बट आई विल यूज़ इट हियर, बट यू गिव मी अ कंसोलिडेटेड यू नो पैकेज डील। मर्स आज की डेट में NCL लेने को तैयार है, बिल्कुल तैयार है। सो आपको स्मार्ट बनना है, कैसे स्मार्ट बनेंगे उसकी भी थोड़ी बात करूँगा, बट आपको मेरे को बताना है कि यू नो आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें। आजकल शिपिंग लाइन जो है ना, सिपर PDA पे कंटेनर भी नहीं देती। देखो शिपर पे डिपेंड कितना कितना मतलब सो बैड एक्चुअली, 45 मतलब इतनी आम ट्विस्टिंग हुई है। आई एम सॉरी, आई हैव ऑल सिंपैथी फॉर यू गाइस, कि जो मर्चेंट हॉल में कार्गो जाता था एक्सपोर्ट का, वो बोल रहे हैं झक मार के आपको कैरियर हॉल में करना पड़ेगा, राइट, एंड दे आर अर्निंग 25% मोर, 25% और मार्जिन बढ़ गया उनका उसमें। तो थोड़ा कोई बात नहीं, हर एक का टाइम आता है, ठीक है ना। सो एनीवेज ऑफ कोर्स रावत साहब थोड़ा सा बताइए ECGC के लिए भी, यू नो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए आप,
EPCG can help you on that. EPCH can help you on that, you know, to bring the experts from ECGC to and advise you. जैसे मैं आज खड़े होकर बोल रहा हूँ, वैसे आपके लिए वो भी organize कर सकते हैं. I think this will be more appropriate if you can organize. They've been doing it. Very good, sir. अच्छा, एक नई चीज़ आई है, it's called Insight Based Supply Chain Finance Platform. अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे प्लेयर हैं इसमें, प्राइवेट कंपनीज हैं, जो आपका प्रोफाइलिंग करती है, बायर्स का भी, उनका हेल्थ फिनेंशियल हेल्थ चेकअप करके बताती हैं कि कितना अच्छा है कितना बुरा है वो, जैसे क्रेडिट स्कोर्स होते हैं ना उस टाइप का. और ऑल्सो दे विल हेल्प यू इन योर रिसीवेबल्स ऑल्सो, कि भाई कहीं होगा ये सीन की डिस्काउंटेड इनवॉइसिंग करवा देते हो कि भाई आपको पैसा जल्दी दे देगा बायर, आपको थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा. सो ऑल दोज थिंग्स आर बेस्ड एंड दीज आर ऑल टेक बेस्ड. तो ये इसमें भी नजर आ रही है, बिकॉज व्हेन वन सी फॉर दिस फोरम आई ट्राइड मीटिंग फ्यू पीपल लाइक यू. कुछ एक्सपोर्टर्स के पास गया था कि भाई क्या कर रहे हो, लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला यार वी आर टेकिंग देम सीरियसली दीज प्लेटफॉर्म्स. बट उनके कुछ मिनिमम्स हैं कि आप 300 करोड़ की टर्नओवर होंगी, ये तो हम करेंगे. ये भी बात. मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर हमारे गिनती के लोग होंगे 300. सर अभी ना कुछ स्टार्टअप्स आई हैं, जो SMEs को भी केटर कर रही हैं. ये मैंने लिखा हुआ देखो सर, ये नई चीज सर देखो, थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा ना सर. अब सब कुछ फ्री में मिलेगा नहीं सर, यू नो, राइट. So unfortunately it's not very favorable time, let's agree, right? So let's move forward. But you yourself is not doing it. Time me. Anybody who is negotiating themselves, you are doing it. You're calling the freight forwarders and even CHAs या लाइन को भी बुलाते हैं कभी? नहीं, लाइन को नहीं. लाइन को नहीं, क्योंकि क्रेडिट नहीं देते. नहीं, क्रेडिट वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा इतना वॉल्यूम नहीं है. लाइन को आई हैव स्पोकन टू हैपेक लाइन, हैपेक लॉयड डायरेक्टली ऑल्सो, बट हमारे को फ्रेट फॉरवर्डर ज़्यादा बेटर रेट देता है. आई एग्री विद यू ऑन दैट. आई एग्री विद यू कि फ्रेट फॉरवर्डर जो है उसका वही जो कंसोलिडेशन का चक्कर है. कंसोलिडेशन का चक्कर है. बट सर फिर भी अपने डायलॉग्स लाइन के साथ बंद मत करिए. आप बुलाएंगे वो आएंगे ज़रूर, चाहे उसको पता है घूम के आ रही है शिपमेंट, बट दे वुड लाइक टू मीट. इफ आई एम अ शिपिंग लाइन गाय, आई लव टू मीट एन एक्सपोर्टर. सर 2 जने नहीं करते, CMA नहीं करता और मर्स नहीं करता, कोई जवाब ही नहीं आता. जवाब ही नहीं. नहीं आता. वो तो बैक ऑफिस बच चुके हैं. आई एम सॉरी टू से, वो थोड़े बैक ऑफिस वाले कंसेप्ट बन गए हैं. हार्डली देयर आर ह्यूमंस, इट्स ऑल मशीन्स. वो सीधा एक डेबिट नोट आया सर. फॉरवर्डर ने टाइम से रिप्लाई भी देते हैं. और बट देन दैट्स व्हाई यू शुड चूज अदर शिपिंग लाइन ऑल्सो ना. उनको भी तो देखो क्या कर रही है, क्या पता ट्रांसशिपमेंट वाली सर्विस है, ट्रांजिट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, फ्रेट तो कम है, लोग तो अप्रोचेबल है, पकड़ो उनको, यू नो. अच्छा, मर्स में भी क्या हो गया है सर, एक और चीज़ हो गई है. ये तो कंसेप्ट था ही, अब उनका Tier 1 Tier 2 भी हो गया है. पता है आपको, Tier 1 अगर आपने सपोर्ट रेगुलरली करा है एज अ कस्टमर, तो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट रेट कम हो जाएगा. वो कह रहे हैं यार हमारे को बंदा ही नहीं है नेगोशिएट करने के लिए, हम आपका अगर वॉल्यूम ज़्यादा है हम अपने सिस्टम में ही कम कर देंगे. सर सारे स्पॉट रेट ऑफर कर रहे हैं कि बिकॉज स्पॉट रेट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. आई कम टू दैट, बिकॉज स्पॉट रेट्स क्यों कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने के लिए. उसका भी एक गेम है, जैसे फ्री डेज होता है डेस्टिनेशन में, 14 डेज 21 डेज, वो नहीं मिलते, वो नहीं मिलेंगे. आप भाई कहीं पे तो कंपनसेट करेगा ना वो, तो वहाँ पे कर रहा है. आपका कौन है जो CHA कर, आपने कहा कि लाइन से बंद मत करो, क्यों? मतलब लाइन से कम्युनिकेशन, क्योंकि दे विल अपडेट यू. हो क्या रहा है, रेड सी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉरवर्डर के पास थोड़ा ना होगी, फॉरवर्डर तो उससे पूछ के देगा. अपने चैनल्स लाइन से बंद मत करो. आई रिमेंबर माई टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गो टू मुरादाबाद, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, जलंधर, मतलब बड़ी खाक छानी हुई है सर. तो वहाँ पे एक्सपोर्टर यूज्ड टू इनवाइट अस, क्या कोई बात नहीं हम काम नहीं कर रहे, आप मिलकर तो जाओ, यू नो. एंड वेरी स्मॉल एक्सपोर्टर यूज्ड टू, एंड दे यूज्ड टू फील डिलाइटेड यार कि लाइन का बंदा आया हुआ है टाई लगा कर. तो हमें भी टाई लगा के जाना पड़ता था. तो वो खुश हो जाते थे कि यार हमारे पास भी आया. अच्छा, मतलब उस टाइम में P&O Netroid was such a reputed line कि they used to feel honor that you know a P&O guy has come to my office. So we built up relationship, and when they had grown big, जब वो एक्सपोर्टर का नंबर बढ़ गया, तब हमें समझ में आई कि इसकी पोटेंशियल कितनी ज़्यादा थी. सर पानीपत में मैंने एक एक्सपोर्टर का 140 फीटर ही डिड विद मी इन 1 month, टेक्सटाइल, पालीवाल ओवरसीज. एपिटेक्स इंडस्ट्रीज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर. तो ये रिलेशनशिप का कारनामा था. अच्छा, फिर मैंने क्या किया, USA ट्रेड लेन जो आज के डेट पे सबसे ज़्यादा मुश्किल बन गई है,
सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन करे थे एक्सपोर्टर्स ने डायरेक्टली, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे हमारे 25 कंटेनर का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने पूरे साल में, 25 कंटेनर्स। और अभी भी हो सकता है सर, ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अभी भी हो सकता है। आप लाइन वाले को बुलाओ, आप वॉल्यूम चेक करो। इसका भी एक कहानी है, मैं अभी मतलब जोधपुर में एक कहानी हुई थी, सारे इकट्ठे हो गए थे, सारे रिश्तेदार जो एक दूसरे के एनिमी थे कि भाई हम इसका भी लेंगे उसका भी लेंगे, हमें 200 कंटेनर में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दो, जबकि दे वर एंटी टू ईच अदर, यू नो, दैट वी विल गिव, ऑल ऑफ अस विल गिव यू सपोर्ट, रेट कम कर दो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट पीपल हैव बीन बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। कॉन्ट्रैक्ट साइन करा 1 ईयर का और उसमें डेट फ्रेट भी हो, अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो आपको डेट फ्रेट भी देना पड़ेगा। सो इट इज गिव एंड टेक बोथ। ठीक है, CH है ना आपका फैमिली मेंबर बन चुका है। ठीक है, ठीक, मैं वही कह रहा हूँ आप ना, इतना रिलाय करते हो ना, क्योंकि आधी रात को भी वो करता है आप वेस्ट के साथ काम करते हो। सर। आई हैव रोज कोई ना कोई पंगा पड़ना ही पड़ना है। Sir, I give a respect to CHA community. Number one, they are the most educated people. वो एग्जाम पास करके आए हुए हैं, एंट्री बैरियर है, बाकी सारे फॉरवर्डर ने तो दुकान खोली हुई है अपनी। भाई CHA का तो एक CBLR का एग्जाम देता है, एग्जाम होता है। हाँ, कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट एग्जाम देता है वो, यू नो, कस्टम उसका इंटरव्यू लेता है, उसके बाद उसको जो लाइसेंस, इंडिविजुअल्स है ना उनके मालिक हैं। और आप सबसे कम पे करते हो उसका। हाँ, सबसे कम वो जो इंडिविजुअल्स उनके मालिक है ना, वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। एग्जैक्टली, यस। उनको इतनी Yes. समझ है, हमें हमारे काम में के बारे में समझ है। बेसिकली हमारा कोर बिजनेस। सर मैंने तो ऐसे लोग देखे जो कस्टम वालों को लेसन पढ़ा देते हैं कि आप गलत बोल रहे हो, यू नो, दे हैव सो मच नॉलेज, यू नो। और स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल के CHA अलग है, हैंडीक्राफ्ट के अलग है, यू नो, दे थ्रू देयर एक्सपीरियंस दे हैव ग्रोन सो बिग, सो अच्छा। देन टू सर्व यू दे हैव ओपनड अप ऑफिसेज एवरीवेयर, यू नो। मुंद्रा में भी ऑफिस खोल लिया उस बेचारे ने, उसने साउथ में भी अगर शिपमेंट है तो या तो टाइप ना भी हो, उनके कनेक्शन है, तो उसका काम है, उसको पता है क्या करना है। CHA जो आज की डेट में करता है वो अभी भी वही कर सकता है। और उनके रेट्स भी ना, देखो हर तरह के लोग होते हैं। जो रियल बिजनेसमैन है, जो आपके साथ 10 साल से 15 साल से काम कर रहा है, वो कभी भी चीट नहीं करेगा। सही बात, वो रेट भी अनरीजनेबल कभी नहीं देगा। नहीं देगा, नहीं, ठीक बात कह रहे है हो ना। अगर कभी उसने 10-20-100 एक्स्ट्रा ले भी लिए ना, जस्टिफाइड। तो आप कहते हो चलो चलने दो, बिकॉज ही इज एटलीस्ट सर्विंग यू थ्रू आउट कंसिस्टेंटली। क्योंकि आपके पास माथा मारने के लिए लोग बड़े सारे नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसे मैम ने बोला कि उनके टीम मेंबर भी नेगोशिएट करते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ। एक स्टोन एक्सपोर्टर होता था जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, छोटा एक्सपोर्टर नहीं था, बड़ा साइज बढ़ता गया धीरे धीरे। उसने अपने स्टाफ को डेडिकेटेडली प्राइसिंग में लगा के रखा। वो लाइन से भी बात करती थी वो लेडी, वो CHA से भी बात करती थी, वाई नॉट, फॉरवर्डर से भी, एंड शी यूज्ड टू गेट पूरा निचोड़ कर मार्केट में अपने ओनर को एंड ऑफ द डे रेट देती थी, ये दिस इज द बेस्ट रेट। एक्सेल शीट बनाई होती थी उसने। तो हु स्टॉप्स यू टू डू दैट, यू नो। ये तो आपको करना चाहिए। आपके ऑफिस में अगर आप नहीं कर सकते तो आप या तो डेडिकेटेड लॉजिस्टिशियन लीजिए, मैंने रखा है इसमें वर्ड, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। एग्जिम न्यूज़पेपर आता है, उसमें सारी सर्विसेज के डिटेल आते हैं, वो आप पढ़ो, सोशल मीडिया में पढ़ो, और जो पढ़ रहे हो अपने बायर को बताते रहो जो भी नई चीज़ हो रही है, यू नो। बायर डोंट वांट टू लिसन टू यू, बट देन यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट टू इन्फॉर्म देम दैट दिस इज हैपनिंग, यू नो। ये फॉर्मर एजुकेशन हो गया, डिले होगी शिपमेंट, सो इट इज़ बेटर टू कम फॉरवर्ड एंड इन्फॉर्म योर बायर्स। मोस्टली शिपमेंट हमारी नॉमिनेटेड होती है बाहर से, तो सारी अपनी जाती है। उसमें आप फिर लोकल चार्जेस चौक के ले लेते हो, फ्रेट फॉरवर्डर, या यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट मैं फटाफट इनपुट टर्म्स कवर कर देता हूँ। यू हैव टू वर्क ऑन योर इनपुट टर्म्स। व्हाई? बिकॉज देखिए, मैं एक नटशेल में बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम ब्लू है दैट इज मोस्ट फेवरेबल फॉर एक्सपोर्टर्स, एज सिंपल एज दैट। जो ब्लू वाली है वो आपकी फेवर है। क्लियर? फास्ट हो गया बस, ये क्लियर हो गई बात। नाउ ट्रैकिंग जो है वो आप एक नया सिस्टम आया है यूलिप, विच इज जस्ट लाइक UPI ऑफ द पेमेंट्स। यूलिप इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इसको आपको यूज करना है। ये आपकी ट्रैकिंग करेगा, यू नो, सारी शिपमेंट्स की, एटलीस्ट विद इन इंडिया। क्यों? क्योंकि दिस इज कैप्चरिंग ऑल डेटा फ्रॉम वेरियस 10 मिनिस्ट्री से डेटा इकट्ठा हो रहा है जो आपको दिया जा रहा है। ट्रेड कहाँ पर है वो भी बता देते हैं। यस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अगर अभी भी आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ूंगा, टाइम बहुत कम है। ये मैं बताना चाहता था बट टाइम कम है। हाँ हाँ, बिल्कुल ले लीजिए सर। ये देखिए, ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए जो शायद सर कर रहे हैं, जो सर ने अभी बताया। आप कंटेनर नंबर एंटर करो और आपको स्टेटस मिल जाएगा। फिर आप कहते हो मेरे को ट्रैक एंड ट्रेस किया, गवर्नमेंट इज गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट।
goes for the traders and manufacturers benefit. ये ईमेल वेबसाइट भी लिख सकते हैं अगर आपका कंटेनर आपका अर्जेंट है, See, you can sir, write an technology email also है। to them कि मेरा कंटेनर वैसे भी जाना है, priority में ऊपर है। नेक्स्ट सेशन करेंगे। So interesting. मतलब I'm really good, you know, that you are so much aware. अब अपने को ऐसे ही अवेयर रखना ना जैसे सर ने अवेयर रखा हुआ है आपको। अगर यूलिप नहीं पता then you are lacking behind. फिर आप कह रहे हो कि यार मैं तो छोटा एक्सपोर्टर हूँ, मेरी तो कोई पावर ही नहीं है कि मैं विजिबिलिटी कैसे मिलेगी, मैं पे भी नहीं कर सकता एक्स्ट्रा। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग हियर। क्रॉस बॉर्डर शायद मैं कवर, मेरे को टाइम लग जाएगा इसमें। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिए। यू सी ये जो है जहाँ पर आपका नाम ज़्यादा आ रहा है ना, ये यहाँ पे ये सबसे वर्स्ट है। ये क्या है? DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। मतलब इतनी डेस्परेशन बिजनेस के लिए कि आपने कस्टम ड्यूटी भी डेस्टिनेशन में अपने सिर पर ले ली। नहीं मानते हैं। मांगते हैं, ठीक है। तो क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक क्या होती है कि इंडिया के अलावा आपको डेस्टिनेशन का भी नॉलेज होना जरूरी है। नॉट ओनली द ऑपरेशन बट कस्टम ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने DDP या DDU शिपमेंट एक्सेप्ट कर ली विदाउट नोइंग द क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स, हाउ कैन यू हैंडल इट? सो इट इज गोइंग टू बी रादर मोर डेंजरस फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे ना जब इस लाइन के नीचे अगर आ गए ना तो आपको आपका क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक शुरू हो गया। ये यहाँ से राइट, ये तो सबसे ज़्यादा डिलाइट है फॉर एनी एक्सपोर्टर एक्सवर्क्स कि भाई उठा लो एंड यू हैव टू इम्प्रेस योर बायर कि भाई एक्सेप्ट करो इसको। मैं रेट कम कर देता हूँ बट एक्सपेक्ट बस करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको सब पता है बट मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। सो ये आपको स्लाइड में मिल जाएगा, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस। आप पढ़ोगे तो आपको सब पता है इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू नो। सो these are the solutions. Of course technology again I am saying is going to play a big role. मैं एक लास्ट चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ये भी आपको सब पता है। यूनियन बजट आपने अभी जो सुना है, लेटेस्ट आया था यूनियन बजट, उसमें किसी ने ध्यान से नहीं देखा आपकी फेवर में चीज़ जाएगी। ये बनने वाला जो शर्मा जी से मैं बात कर रहा था, बसी साहब से भी बात कर रहा था, दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स, these are dedicated to whom? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME। अभी होगा नहीं सर? नहीं बन सकता। देखो सर अब पता बहुत लॉजिस्टिक चैलेंज है। हाँ आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू बहुत प्रॉब्लम्स हैं सर, इसीलिए ना गवर्नमेंट खुद नहीं कर रही, वो PPP मॉडल में लाना चाहती है। तो अगर प्राइवेट ऑपरेटर नहीं आएंगे ना, जैसे शर्मा जी बताएंगे, दे आर ऑलरेडी टाइंग अप हैंड्स विद द गवर्नमेंट। तो ये पॉसिबल है सर, और ये एक होप है फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। सर ई-कॉमर्स हमारे लिए वैसे एक चैलेंज है सर, ये सॉल्व करेगा बहुत सारी चीजें हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू हैव सम फैसिलिटी ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट जिससे आप काम कर पाए। क्योंकि देखो सर, अगर आप ई-कॉमर्स में नहीं आए, यू विल बी मिसिंग ऑन द ऑर्डर्स इन फ्यूचर आपको आना ही पड़ेगा, बिकॉज छोटी शिपमेंट जो है ना, इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू ई-कॉमर्स मोड। As the cost of sea freight continues to rise, it is imperative to adapt to the evolving shipping landscape. Understanding the factors contributing to escalating costs, acknowledging the consequences, and employing strategies to secure cargo efficiently can help mitigate the impact on our businesses. Select a smart logistics partner, a big resource, who strive to provide valuable assistance and resources to navigate these challenges effectively, emphasizing service excellence throughout your shipping endeavors. Thank you so much, very much. And here is the end of my presentation. Thank you so much.